Hello everyone, so welcome to this tutorial. इस tutorial के अंदर we are going to see how to solve Bernoulli equation. तो Bernoulli equation के solution के लिए we need to identify what is Bernoulli equation. First of all, we know that it is a first order differential equation, and the general form of Bernoulli equation is following. So d by dx y plus p of x. So it is very much similar to the linear equation, except there is one crucial difference, that on the right hand side we have not only the function of x, but also we have dependent variable with the power n, and that n needs to be that n cannot be 0 or 1. It should have any value other than 0 or 1, because अगर ये 0 होगा तो ये linear equation होगी, अगर 1 हो तो ये separable होती है. और इसको मैंने जहाँ पे differential equations को summarize किया है वहाँ पे डिटेल से डिस्कस किया है. So any equation, first order differential equation, which can be written in this standard form is known as Bernoulli equation. Okay, once we identify the Bernoulli equation, what is the substitution we use? This can be used solved by using substitution such that u is equal to y 1 minus n. तो हम ये substitute करते हैं तो ये equation, this equation becomes basically linear in u. तो अगर आप ये सब्स्टिट्यूशन ठीक से करो तो आफ्टर सब्स्टिट्यूटिंग तो du बाई dx ये u में लीनियर हो जाती है, प्लस some different function p of x this time. So in order to note that this is not original p of x, it can be, but it can be different as well. P of x u, once again q of x भी चेंज हो जाएगा in general, तो in order to note that मैंने यहाँ पे q of x लिखा है. So now this equation becomes linear in u, you can see. तो फिर आप u में इसको सॉल्व करोगे linear by using integrating factor, or at the end we use this back substitution to find the solution. In summary, अगर कोई भी equation general form, कोई भी equation which can be written in this general form where n is not equal to 0 or 1, कोई other value हो सकती है, जैसे 1/2, 3/2, 2, -2, something like that, तो उसको हम इस substitution से solve करेंगे. So let's solve few equations, but let's practice together. Bernoulli equation के हम कुछ equations की practice करते हैं, and then we will see how comfortable you are in solving these equations. Okay. तो अगर आप ये नोट करो, ये ऑलरेडी ऑलमोस्ट स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखी हुई है. इफ़ यू कंपेयर dy बाई dx दोनों तरफ है. यहाँ में p ऑफ x की वैल्यू हमारे पास -1 है, राइट, और q ऑफ x इज e पावर x, दिस इज q ऑफ x. मोर ओवर हमारे पास यहाँ पे n की वैल्यू 2 है, n इज इक्वल टू 2. So this is a Bernoulli equation. So we have identified everything. तो हम क्या substitute करेंगे? So we learned that we will substitute u is equal to y 1 minus n, और 1 माइनस n अब 2 है तो मैं यहाँ पे 2 लिखूँगा, 1 minus n. ठीक है, तो it will become u is equal to y -1. ठीक है जी, -1 हो जाएगा. एंड आई नीड y बिकॉज मुझे y सब्स्टिट्यूट करना है इस इक्वेशन में. सो आई नीड y अलोन. तो इसमें y फाइंड करने के लिए मैं दोनों साइड पे इक्वेशन को आई विल रिवर्स दिस इक्वेशन. रिवर्स इन अ सेंस मैं रेसिप्रोकल ले रहा हूँ, तो ये u -1 हो जाएगा. ठीक है जी, तो u -1 हो जाएगा. Now what I need y, okay,
तो इसको मैं हाईलाइट कर लेता हूँ बिकॉज आई नीड दिस। तो एक तो ये मुझे सब्स्टिट्यूशन करनी है y, एंड सेकेंड इक्वेशन आई नीड इज़ dy बाई डी एक्स। तो इसी का मैं डेरिवेटिव लूँगा dy ओवर डी एक्स, इट विल बी इक्वल टू माइनस, और फिर u की पावर आप डिक्रीज करोगे -2 और डी बाई डी एक्स, u का डेरिवेटिव आएगा साथ, ठीक है। तो सेकेंड सब्स्टिट्यूशन dy बाई डी एक्स ये मैं करूँगा। सो आई नीड दीज टू सब्स्टिट्यूशंस टू मेक दिस गिवन इक्वेशन इन फॉर्म ऑफ u। तो अब मैं u में लिखता हूँ, तो आई विल राइट माइनस u पावर -2, ओके, व्हाट एल्स, डी बाई डी एक्स, और y की जगह u आ जाएगा, और फिर माइनस y की जगह u -1 लिखेंगे हम, u -1 लिखा, और e पावर x, और वंस अगेन y की जगह u -1 लिखेंगे, y की जगह u -1, और ऊपर 2 है तो ये u -2 हो जाएगा, ठीक। अब मैं पूरी इक्वेशन को -u² से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो आई विल मल्टीप्लाई होल इक्वेशन विद -u²। फिर क्या बनेगी ये फॉर्म, सॉरी, so I will write du by dx minus u² से मल्टीप्लाई किया, माइनस माइनस प्लस हो गया, एंड दिस माइनस विल आल्सो बिकम प्लस, u² से मल्टीप्लाई किया है तो यहाँ पे u -1 है तो u रह जाएगा, और राइट साइड पे u² से मल्टीप्लाई करेंगे तो ex रह जाएगा। नाउ यू कैन सी दिस इक्वेशन हैज़ बीन रिड्यूस्ड टू अ लीनियर इक्वेशन इन u। आप लीनियर इक्वेशन u में है, आप इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करें और इसको सॉल्व कर लें। तो लेट मी सॉल्व वन इक्वेशन, देन यू कैन सॉल्व। इफ़ यू डोंट नो हाउ टू सॉल्व लीनियर इक्वेशन, आई हैव अपलोडेड अ ट्यूटोरियल ऑन दैट, गो देयर एंड सी इट। यहाँ पे मैं क्विकली आई विल गो थ्रू इट। तो p ऑफ x यहाँ पे 1 है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर पहले फाइंड करेंगे। इंटीग्रेटिंग फैक्टर लेट्स कॉल दैट म्यू, वो होगा e पावर dx विच इज़ ये होगा e पावर x होगा, राइट। तो e पावर x से मैं मल्टीप्लाई करूँगा पूरी इक्वेशन को, तो आई कैन राइट d बाई डी एक्स, d by dx in this form, u और साथ इंटीग्रेटिंग फैक्टर आएगा ex, दोनों तरफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई किया है तो e पावर 2x आ जाएगा, और फिर मैं इसको इंटीग्रेट कर दूंगा x पे दोनों साइड पे। सो ऑन इफ यू सी ऑन लेफ्ट हैंड साइड these two cancels out and I will have u e पावर x, और यहाँ पे 1/2 e पावर 2x प्लस c, ओके, प्लस c। नाउ आई नीड u ओनली, सो u में ये इक्वेशन होगी u इज इक्वल टू e पावर -x से मैं पूरे को मल्टीप्लाई, ये इधर आके e पावर -x होगा तो 1/2 e पावर x प्लस e पावर -x और साथ c आएगा इसके, ठीक। बट आई नीड द सॉल्यूशन इन y, तो ये यहाँ पे लिखा हुआ है u इनवर्स इज इक्वल टू y, राइट। तो ये आएगा इसका आंसर, u की जगह मैं लिखूँगा 1/y एंड द होल थिंग ऑन द राइट हैंड साइड। तो इसको कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। सो दिस इज द सॉल्यूशन, सो ये सॉल्यूशन है आपका। Alright, let me erase this. So let's solve one or two more questions on this. Pause the video and try to solve it by yourself. Compare कर लें इसके साथ standard equation के साथ. Let me copy paste this standard equation.
तो मैं यहाँ पे कॉपी पेस्ट करता हूँ और देखें ये इज इट अ Bernoulli equation. Pause the video and try to solve by yourself. Okay, so if I rearrange a little bit, I can do dy by dx और माइनस y को इधर प्लस y में I will make it plus y और राइट हैंड साइड पे I will make x y4. Okay, so if you see here p of x यहाँ पे 1 है, so p of x is 1. q of x हमारे पास x है और n हमारे पास 4 है, right? So this is a Bernoulli equation, so we know we can substitute now u is equal to y और इसकी पावर हम लिखेंगे 1 माइनस n 4 है तो ये -3 हो जाएगा. So I'm writing directly here now. Okay, what else? So मुझे u चाहिए, I have written u. उसके अलावा I need dy by dx, तो उसके लिए मुझे ये इक्वेशन थोड़ी सी चेंज करनी पड़ेगी. So y को मैं इधर लेके आता हूँ, इसके साथ पावर +3 होगी, तो u की पावर -1/3 हो जाएगी, राइट? बिकॉज मैं इसको ऐसे कर रहा हूँ 1/y³ is equal to, let me do it again, u is equal to 1/y³, ऐसे किया और फिर y³ को इस साइड पे लेके आए तो 1/u आ गया और फिर y is equal to 1/u 1/3 और फिर आप इसको ऊपर लेके जाओगे तो u पावर -1/3 हो जाएगा. सो दिस इज़ हाउ इट इज़ डन. तो ये सब्स्टिट्यूशन मुझे चाहिए, y चाहिए और फिर dy by dx चाहिए. सो dy by dx will be equal to -1/3 u और -1/3 -1 कितना होगा? So -1/3 -1, so it will be -4/3 -4/3 du by dx आ जाएगा, du by dx. So this is the dy by dx I need. So summary अभी तक ये है कि let me see my notes if I haven't made any mistakes. I don't think so. Yes, so far so good. तो अब करना ये है कि आप सब्स्टिट्यूशंस करें और अगर हमने ये ठीक कैलकुलेशन की है तो ये इक्वेशन शुड बी रिड्यूस टू अ लीनियर इक्वेशन इन u. एंड लेट्स सी, dy by dx -1/3 और u की पावर -4/3 है, साथ d by dx u प्लस y क्या है? y है u की पावर -1/3 इज इक्वल टू x और y की जगह मैं लिखूंगा u. ये -1/3 है तो ये -4/3 हो जाएगा. नाउ आई विल मल्टीप्लाई होल ऑफ दिस विथ -3u 4/3 से मल्टीप्लाई करता हूँ मैं.
So if I multiply whole of this by this, so then I will get du by dx -3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, इट विल बिकम -3, तो u -1/3 और ये +4/3 है, तो आई हैव +4/3 और -1/3. So what I will have 4 -1, 3/3, which is 1, right? So I will get u here and x on the right hand side, and you see this equation is linear in u. Now you can find the integrating factor. इसको integrating factor से आप solve कर सकते हो, and don't forget we need y. Solution आपको u में मिलेगा, back substitution करोगे तो y मिल जाएगी. And let's do one final question and try to pause the video and try to solve yourself. Okay, equation is not written in a standard form. Let me put it in standard form. So I will write dy by dx, y -12 subtract करूँगा इसमें से, तो मैं ये y माइनस ये 3/2 है, उसमें से -1/2 करूँगा, तो I am too lazy to do it, so it will become y, and on this side it will become, because I am multiplying whole equation with y -12, so I will have y -12 here. Okay, so let's now compare this equation with the Bernoulli's equation. I have p of x 1 once again, और यहाँ पे q of x भी 1 है, this time q of x is not present, और n हमारे पास इस दफ़ा -12 है. So if I do the substitution, because I know this is Bernoulli, I will do substitution. U is equal to y 1 minus n, so 1 minus n है -1/2, so it will become +1/2, which will give me 2 3/2, so y 3/2. Okay, so I need y alone, so y will be equal to u 2/3. So this is the first substitution I need. फिर मुझे dy by dx चाहिए, so it is easier to find dy by dx in this case. तो dy by dx होगा 2/3 u. अब 2/3 से I need to subtract 1/2, and in this case when I subtract it, 2/3 से आप 1 subtract करोगे तो I will get -1/3 और आएगा du by dx. So this is the second substitution I need. Okay, now what? Now we need to substitute all of this in this equation and see what happens. So पहली term substitute करते हैं, it will become 2/3 u -1/3 और d by dx u प्लस y को आप सब्स्टिट्यूट करोगे u 2/3 से, u 2/3 इज इक्वल टू, यहाँ पे y को भी u 2/3 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो u -1/3 आ जाएगा. अब मैं पूरी इक्वेशन को 3/2 u
1/3 से मल्टीप्लाई करता हूँ. So what I will get is d by dx u प्लस 3/2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ u बिकॉज आई एम मल्टीप्लाइंग 1/3 और 2/3 तो ये 1 हो जाएगा. और राइट हैंड साइड पे मैं पूरी इक्वेशन को 3/2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो आई विल हैव 3/2 हियर और u 1/3 से कैंसिल हो जाएगा. सो दिस इज द इक्वेशन आई गेट और ये वंस अगेन लीनियर है u में. नाउ यू कैन सॉल्व इट और बैक सब्स्टिट्यूशन करके आप सोल्यूशन निकाल लो. So this is it. You can practice these problem from our recommended books. Exercise 2.5 में ही आपको problems मिल जाएंगी. So thank you.